We are honored to welcome Dr. Neha Khurana, who will be joining us for the second session on Introduction to Soft Computing. Dr. Neha Khurana is a highly respected academic and researcher with an impressive 23 years of experience in the field of engineering and technology. She currently serves as an assistant professor at University Institute of Engineering and Technology, Maharshi Dayanand University, where she has made outstanding contributions to teaching, research, and innovation. Her core areas of expertise include artificial intelligence, robotics, and soft computing. She has authored over 100 research papers in reputed journals and conferences, demonstrating her deep commitment to advancing knowledge in these domains. She also holds a patent and has successfully led 3-4 sponsored research projects reflecting her innovative approach and leadership in applied research. We are privileged to have her with us today to share her insights. I would like to invite ma'am to please come on stage and guide us. A huge round of applause for ma'am. Ma'am, please come. Thank you, Dr. Abhilasha, and thank you, the team Mary. Starting from the congratulations to the college and staff, hardworking staff, management for getting this opportunity to conduct this privileged AICTE Atal sponsored FDP, 6 days FDP. The topic chosen is very thoughtful and meaningful. Latest one, the topic is supercomputing and quantum computing. All the three heavy words are really capturing the society these days. So I have been very much, from very long time I've been collaborated with the people in this Mary Institute. I know a lot of them, and thank you all of them for calling me and giving me this privilege of having a word with all of you. Now, just I want to ask you, what do you expect this? I don't know how many of you are familiar with this soft computing words, artificial intelligence. Any one of you is familiar with these words? What are these and what actually occurs? What we have in this artificial intelligence or soft computing? Any idea? Any one of you? No idea? Huh? How it works on data set, yes, but it is such a great hot topic. So basically what I thought is that I have chosen this topic, though I have been into the depth of the research in these topics, but I have been through the basics of this topic in this slides only, because I was little into this, kept this into my mind that people sitting over here may be more comfortable by knowing the basics of this AI. Right? I have attended many Atal programs. Attended se zyada I have given expert talks in those. So what I found is this is a true reality. Many people from IIT professor come. What they do is they present their work, what they are doing at their research and laboratories, and people sitting in front of them, they don't get anything. Because we know only our work, what we did. We don't know what a person sitting in IIT, his or her scholars, sitting 24 hours in their laboratory, what they are doing, we don't know. And we are not interested in that. Until we reach over there and get interacted directly with them, we are not interested. हमें समझ भी नहीं आता है what they tell. Even a person like me who is dealing with AI and someone's come in front of me and tell me कि मैं ये कर रहा हूँ अपनी laboratory में, ये कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आएगा. मुझे समझ ही वही आएगा जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ और उसका बेसिक्स, जिस पे मैं जब तक until I will do some coding in Python or MATLAB or know the basics, application, apply कहाँ होना है society में, that is more important. बेसिक नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है. तो इसीलिए मुझे यही लगा कि I should talk more about the basics of this soft computing / AI. They both are almost synonym, but I have opted a term soft computing here because I'll tell you, AI भी हम बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. They almost are synonyms. At least for starting people, they are synonym, right? So इसमें इसका ऑपरेशन बताएंगे आप मेरे को? नेक्स्ट आ गया. देखिए, मोस्टली दिस इज if I cover in one line, this is soft computing.
दिस इज अ पिक्चर विच रिप्रेजेंट्स न्यूरल नेटवर्क। अभी आपको ये बात पता है, अभी मैं कैन आई गेट सम, ये भी मिल सकता है मुझे, अगर मैं अभी आपको अभी मैं अगर आपको एक बिल्ली या शेर की फोटो दिखा दूँ ना, तो आप में से सब लोग बता देंगे कि ये बिल्ली है, ये शेर है, ठीक है। आप लोग कैसे बता देंगे? क्योंकि आपने बचपन से उसको बुक्स में पढ़ा है, बचपन से उसको विजिबल शेर तो नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो जू में देखा होगा, अदरवाइज हमने वी आर वेरी मच फेमिलियर बिकॉज द न्यूरॉन्स इन आवर माइंड नो इट वेरी वेल कि ये बिल्ली है और ये शेर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई मैनेज, ठीक है गौरव, कोई बात नहीं, चलने दो अभी इसको, अभी तो चलने दो, फिर व्हेन आई नीड आई आस्क। ये कितनी कॉमन पिक्चर है ना, कि ये जो पिक्चर आई ना, तो मेनी ऑफ द व्यूअर्स हियर सिटिंग एकदम से ये हो गया कि यही तो पिक्चर है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, है ना। ऐसे बहुत लोगों को अंदर फीलिंग आई होगी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग मींस एक्चुअली मींस दिस मीनिंग, ये न्यूरल नेटवर्क का एक वो है कि डाटा क्या है, ये जो क डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये क डाटा है। और मैं जो बात कर रही थी बिल्ली और शेर की, वो मैं इसलिए बता रही थी कि आपका जो माइंड है ना, उसने बहुत बार बिल्ली भी देखी है और शेर भी देखा है, जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स है, लिंकेज है, दे आर वेरी मच ट्रेन्ड कि ये बिल्ली है या शेर है। अब आप इस क को तीनों में से किसी भी तरह लिख दो, आप में से यहाँ बैठा बंदा उसको फटाफट बता देगा कि ये क कबूतर ही है। लेकिन जो ये टर्म है ना सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इसके लिए आपको इस सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो एक बॉक्स है ना, इसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार आपको इसको ऐसा थोड़ा दिखाना पड़ेगा, एक बार ऐसा दिखाना पड़ेगा, एक बार ऐसा दिखाना पड़ेगा, एक बार उसका और थोड़ा मुड़ा दिखाना पड़ेगा। तो मतलब सेट ऑफ बहुत सारा डाटा आपको इसको देना पड़ेगा, जितना ज्यादा। कुछ कहना चाहते या तो कॉल माइक बोले आप। तो ये जो आप मैं कह रही हूँ ना, आपको ये 100 ऑफ आपको इसको सॉफ्ट कंप्यूटिंग बॉक्स को दिखाने पड़ेंगे, देन इट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये कबूतर है। यही सेम चीज होती है अनार के साथ, यही हुई बिल्ली के साथ, यही हुई शेर के साथ। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारा माइंड तो ट्रेंड है, हम किसी भी तरह क को पहचान लेंगे, लेकिन जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग बॉक्स है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि एक मशीन है, इसको आपको हंड्रेड्स ऑफ डाटा देना पड़ेगा। डाटा कैसा भी हो सकता है, नॉइजी भी हो सकता है, मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप डील कर रहे हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंप्यूटर पे, आप हार्डवेयर में डील नहीं कर रहे। यू कैनॉट रिलाई ऑन योर आईज। ये तो एक सिंपल सा क कबूतर है। अब मैं आपको कहती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, पहले हम इसी के थ्रू चलते हैं। ये सब चीजें वी आर गोइंग टू कवर इफ वी विल गेट टाइम, अदरवाइज आई विल गो इन द बेसिक्स ओनली, ठीक है। दिस अगेन सॉफ्ट कंप्यूटिंग की कुछ ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर कंप्यूटिंग्स, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक एंड और भी बहुत सारी है जो हम अभी पढ़ेंगे। ब्रीफ ओवरव्यू, ये वही क, अब इसमें क की जगह अ बताया हुआ है। सबसे बड़ी बात फर्स्ट जो रेड में है, दैट इज रफ एस्टिमेशंस टू ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द डिफरेंट कंप्यूटेशनल इश्यूज। बात क्या आई कि क कबूतर, कहीं पर उसका मुड़ा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, हम तो पहचान लेंगे। हमने उस मशीन को इतना कैपेबल बनाना है कि वो हर तरह के क कबूतर को पढ़ के रिजल्ट दे दे कि क है। मान लीजिए वी आर गोइंग टू फोरकास्ट कि मेरी कॉलेज में कल आने वाले दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है। लेट अस से दिस, वी हैव टू फाइंड इट आउट बाय यूजिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग। फोरकास्टिंग इज अ वेरी ब्रॉड एरिया जिसमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, विल गो टुवर्ड्स द फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरी कॉलेज में, कल कॉलेज ऑन है कि ऑफ है, अगर ऑन है तो टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं या सिर्फ फैकल्टी के लिए ऑन है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पे। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से यू शुड हैव कंप्लीट डाटा, थाउजेंड्स का डाटा। जितना ज़्यादा डाटा होगा, 100 डाटा होगा तो न्यूरल नेटवर्क या फिर सॉफ्ट कंप्यूटिंग मशीन कम ट्रेन होगी, 1000 डाटा होगा तो ज़्यादा ट्रेन होगी। उसमें से कुछ डाटा ऐसा भी होगा जो मिसिंग होगा, कुछ डाटा ऐसा भी होगा जो नॉइजी होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये सब फैक्टर्स को इनपुट करके जो हमारा रिजल्ट आएगा ना कि कल मेरी कॉलेज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, वो हम उससे कैलकुलेट करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग वाले
मॉडल्स है या जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं एआई की, सॉफ्ट कंप्यूटिंग की, और उसके बाद देन वी विल टुमारो मेजर कि कितना हमारा यूज़ हुआ। वी कैन प्रिडिक्ट कि मॉडल कितना बढ़िया है। अगर मॉडल बढ़िया नहीं है तो और डाटा कलेक्शन होगा, उसको और हम इम्प्रूव करेंगे। हमने इम्प्रूव किया, मैक्सिमम डाटा दे दिया, 1000 दे दिया, 10,000 दे दिया, मान लीजिए अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, 90% मॉडल एक्यूरेट है, हम मॉडल को ही हटा देंगे, एआई टेक्निक रिप्लेस करके दूसरी रहेंगे। एआई टेक्निक भी तो अच्छी हो सकती है। तो ये डिफरेंट सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स इसीलिए ही बनी है। मान लीजिए आज तक की बेस्ट एआई टेक्निक पर आप पहुंच चुके हैं, विद दैट डाटा स्टिल द एरर इज 5%, वी वांट टू रिड्यूस इट। व्हाट विल डू इज विल मेक हाइब्रिड ऑफ 2 सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। ये सारा रिसर्च का काम मैंने अपनी पीएचडी में किया हुआ है। आई वर्कड ऑन रोबोटिक मैनिपुलेटर पाथ ट्रैकिंग। एक रोबोटिक मैनिपुलेटर ले लिया और उसको एक पाथ पर्टिकुलर ट्रैक करवाना था, उसके लिए एक पहले टेक्निक यूज करी, डाटा जनरेट किया, एक टेक्निक यूज करी, दूसरी करी, हाइब्रिड्स बनाए डिफरेंट और उनमें से बेस्ट मॉडल लेके देन मूव फर्दर। तो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर चलता है। जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, या आप जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट घूमने जा रहे हैं, अपने मोबाइल में मिनट में वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं, देखते हैं आप कहाँ से आया, फोरकास्टिंग से, एआई से, ठीक है। उसमें अकेला न्यूरल नेटवर्क नहीं है, न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक। न्यूरल नेटवर्क के साथ न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक जनरल। एक चीज़ और आपको बताती हूँ, एक दिन आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू माई मदर कि मम्मी मुझे ना एक रज़ाई लेनी है, ठीक है। एंड when my call ended, when I saw my mobile, what was coming in the mobile? Advertisements of various types of quilts. Can you see the smartphone in your hand? The things you are talking personally or privately to some person, or मान लीजिए not personally, casually. चलिए हम कहते हैं इस उम्र में क्या पर्सनल क्या कुछ नहीं, ठीक है। कैजुअली इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, योर फोन इज रिकॉर्डिंग दैट। दिस इज अगेन ड्यू टू एआई एंड ये सपोर्ट वेक्टर मशीन करता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक। और जो उसके बाद उसके साथ रिलेटेड जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, द एडवर्टीजमेंट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन, समझ रहे हैं आप। और एक और बहुत बड़ी एप्लीकेशन बताऊं आपको, मैं सीधा एप्लीकेशन पे आ गई। आई शुड नॉट हैव डन इट, पहले आपको बेसिक बताना था फिर एप्लीकेशन बतानी थी, लेकिन एप्लीकेशन बताने से थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा आप लोगों का। एक और बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, हम लोगों में से बहुत लोग सुबह उठते ही शेयर मार्केट खोलते हैं, उसमें प्रेडिक्शंस आती है, वो सारी एआई की प्रेडिक्शंस है। एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है एआई प्रेडिक्शंस का, जो कि एआई प्रिडिक्ट करता है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं आपको एआई का अगर सॉफ्टवेयर आता है तो आप स्टॉक मार्केट को वो करें, प्रिडिक्ट करें, बट मैं नहीं करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जो असली इंडस्ट्रीज़ है ना, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको प्रिडिक्शन के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शन मीन्स एक्यूरेट। चलिए मान लीजिए मुझे सॉफ्ट कंप्यूटिंग की एक्यूरेट टेक्निक आती है, बट मेरे पास एक्यूरेट डाटा भी तो होना चाहिए ना प्रिडिक्ट करने के लिए। एक अच्छी इंडस्ट्री अपना एक्यूरेट डाटा कभी भी मार्केट में नहीं उतारेगी, वो डाटा कभी भी आता ही नहीं है। अगर कोई स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हो रहा है ना, तो वो लगभग तुक्का, एक दो होंगे जिनका ठीक होगा, बाकी सब तुक्का फुक्का चलता है, ठीक है। ये हम सबको पता है, हम सब बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हम सब लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस पे, और प्रॉपर कोर्सेज होते हैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के। आप सब लोगों को पता है इस बात का, पता है ना? कितनों को पता है? सबको पता है। और आजकल तो स्टूडेंट्स भी बहुत करते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी है पैसा कमाने की। पीछे शायद स्टूडेंट्स बैठे हैं ना कुछ, बहुत जल्दी है इन बच्चों को पैसा कमाने की, और मोस्टली खोते हैं पैसा। जब तक आप प्रॉपरली सॉफ्ट कंप्यूटिंग की टेक्निक्स को, फैक्टर्स को खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, वो भी गलत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री आपको डाटा देगी ही नहीं। जो उसके पास डाटा है वो अपना प्रिजर्व रखती है डाटा, उसको आपको पैसे थोड़ी देने हैं इंडस्ट्री को। बहुत प्रैक्टिकल है दुनिया ये। इसकी स्टॉक मार्केट में आपको नहीं जाना है, तो इसमें हम कर रहे थे, पहला हमने ब्रीफ ओवरव्यू किया इसका। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा ये चीज़ है कि ये रफ एस्टिमेशन और जो नॉइजी या मिसिंग डाटा है उसको भी ओवरकम करके
एक आउटपुट ज़रूर निकालेगा। वो कितना एक्यूरेट होगा वो हम नहीं कह सकते हैं अभी, उसके लिए फिर हम डाटा और कलेक्ट करते हैं या हम टेक्निक बदलते हैं, ठीक है। तो रफ एस्टिमेशन इसमें बहुत अच्छी होती है एंड इट रिलाइज बोथ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। इंटेलिजेंस तो है बट वो आर्टिफिशियल है, बहुत बड़े वर्ड्स है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ रहे हैं आप। इंटेलिजेंट तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, दोनों बातें आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स 100% relies on human mind. The data is coming from human mind. All the and k are coming from writing of a person. अब human का mind कैसा है वो डिपेंड करता है डाटा कैसा गया हुआ है। अगर ह्यूमन का माइंड ही खुराफाती है तो वो डाटा खुराफाती ही निकलेगा। अगर ह्यूमन का माइंड अच्छा है, शरीफ है, तो वो डाटा शरीफ निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्रीज आपको बेकार डाटा देंगी प्रेडिक्शन के लिए, ये सेम बात है। बट एआई फिर भी एआई इसकी नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करती है और इट ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इंटरेक्ट विद रियल वर्ल्ड इश्यूज। यस इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि इसमें क्या है, कोडिंग है ज़्यादा। आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, आप में स्किल है तो यू कैन प्रिडिक्ट वेरी वेल, ठीक है। अपनी तरफ से अगर आपको प्रिडिक्शन अच्छी आती है तो यू कैन वाइल सिटिंग ऑन डेस्कटॉप एंड यू हैव ऑल द डाटा। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, हमने सर्वे किए हुए हैं, बच्चों को एमटेक के काम भी करवाए हुए हैं, जो नेचुरल हमारी बहुत सारी ऐसी एटमॉस्फेरिक वेबसाइट्स हैं जिन पे डाटा है और वो ऑथेंटिक होता है, गवर्नमेंट का डाटा है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के लिए भी गवर्नमेंट का डाटा आपको बहुत सारा मिल जाता है, गवर्नमेंट ऑथराइज डाटा। अगर किसी को वहाँ से वो डाटा मिलता है, प्रेडिक्शन आती है, सोलर रेडिएशन का प्रेडिक्शन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट्स पे है, सब कुछ डाटा अवेलेबल है। और वो डाटा को लेके आप एक डेस्कटॉप पे बैठ के अपने स्किल से आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। आपको रियली आपको मार्केट में जाना थोड़ा सा वो मतलब एक आप हार्ड कंप्यूटिंग करें उससे ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एक बहुत बड़ी बात है कि जैसा भी डाटा आप डालोगे ना, झूठा सच्चा 1 1 2 2 3 3 4 4, सॉफ्ट कंप्यूटिंग ने आपको रिजल्ट देना ही देना है, चाहे वो डाटा आप वैलिड हो या ना हो। मान लीजिए आप बिल्ली को प्रिडिक्ट करना जा रहे हैं और कुत्ते की फोटो दिखाते जा रहे हैं ना, तो वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग कह देगा कि ये तो बाद में आपने डाटा दिया कुत्ते का और आपने बिल्ली प्रिडिक्ट करानी है, तो वो कुत्ते को ही किसी को बिल्ली प्रिडिक्ट करके निकाल देगा। समझ रहे हैं आप, ये ड्रॉबैक है इसका।